Everyone, this is Dr. Usha Kumari, Assistant Professor, Department of English. Today I will discuss with you the summary of uh, the next chapter with a photographer. It is written by Stephen Leacock. Stephen Leacock has multicultural experiences as he was born in England and brought up in Canada. He is known as a humorist. His literary work strikes a balance between critical satire and sheer absurdity. Leacock has written extensively on his chosen fields of study, political science and political economy. Leacock has been a prominent professor who reflects on issues of everyday situation with wit and cleverness. He has been awarded with the Royal Society of Canada's Lone Peers Medal in the year 1937. So हम देखते हैं कि जो विद द फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर स्टीफन लीकॉक का एक लिखा हुआ रचना है और स्टीफन लीकॉक का एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स को दिखाता है क्योंकि वो इंग्लैंड में पैदा हुए, फिर उनकी जो रियरिंग हुई है, पालन पोषण हुआ है, वो कनाडा में हुआ है। ये ह्यूमर के लिए, अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं और लिटरेरी व्यंग्य भी इन्होंने किए हैं। बड़ी क्लेवरता से फार साइटेड वे में ये अपना क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं और इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम किया है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी रचनाएँ दी हैं और 1937 में इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा की तरफ से पायरस मेडल से नवाजा गया था। आज हम इनका लिखा हुआ एक चैप्टर है, इनकी लिखी हुई एक रचना है क्रॉस, जिसे हम पढ़ेंगे और नाम है विद द फोटोग्राफर। ये भी इनका बहुत ही ह्यूमरिस्टिक वे में लिखी गई एक स्टोरी है। द स्टोरी रिकॉर्ड्स द अम्यूजिंग अकाउंट्स ऑफ द narrator's encounter with a photographer. Therefore, the story takes studio as its setting. The present story is in a dialogic form as it is constituted by the dialogue between the photographer and the narrator. The narrator wants his photograph taken, therefore he visits the photographer. The idea of going to studio in our contemporary times may appear to be eccentric, as our youth belong to the age that is dominated by the selfie taken by smart and Android phones. On being requested by the narrators to click a photo, the photographer looks at the narrators without any enthusiasm. The narrator starts to describe the physical appearance of the narrator. आजकल हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और तुरंत सेल्फी लेते हैं, बट एंसर टाइम्स बहुत पुराने टाइम में, ओल्डन डेज़ में ऐसा सब कुछ नहीं होता था। फ़ोटो के लिए हमें स्टूडियो जाना पड़ता था और बहुत ही पीरियड्स एक प्रोसेस होती थी जिसमें फ़ोटो क्लिक किया जाता था। ऑफ the photographer is described as a man in grey suit with the dim eyes. He looks like a natural scientist. Suddenly he stops describing the photographer's external appearance by saying everybody knows what a photographer is like. Leacock introduces the photographer to his readers as a man who has no enthusiasm for the narrator's photo when he visits his studio for the photograph. And we also see that when we look at the description with a critical gaze, one may speculate that the writer intends to suggest that the act of taking a photograph is not as passionate as the act of an artist. तो जैसे ही हमारी स्टोरी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि जो हमारा ऑथर है, हमारा राइटर है, वो मजाकिया वे में, ह्यूमरस वे में बताते हैं कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र के पास जाते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। एंड वहाँ पर वो एक जो सेटिंग है वो स्टूडियो की है क्योंकि फ़ोटो खिंचाने के लिए गए हैं। उन समय में सेल्फीज़ के लिए फ़ोन नहीं होते थे, एंड्रॉयड नहीं होते थे। तो वो कहते हैं कि मैं फ़ोटोग्राफ़र के वहाँ गया और
अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैंने कहा उसे, और फोटोग्राफर के पास जाके जैसे ही फ़ोटो खिंचवाने का विचार उसके दिमाग में आया, ये बड़ा उस टाइम में बड़ी अजीब सी बात होती थी, बड़ी अद्भुत, बहुत ही विचित्र सी बात होती थी, क्योंकि आज के जो टाइम में हम सेल्फी और क्लिक कर लेते हैं तुरंत अपने ही फ़ोन से, तो उस टाइम ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो जब हमारे ऑथर जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए और प्रार्थना करते हैं उस फोटोग्राफ़र से कि वो उनकी फ़ोटो ले ले, तो ये जो फोटोग्राफ़र है इसके अंदर बिल्कुल भी एंथुसियाज्म नहीं है, और फ़ोटो खींचने के लिए जब वो रेडी होता है तो वो उसके जो ऑथर है उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बातें करना शुरू कर देता है। ये जो फोटोग्राफ़र है इसने एक ग्रे रंग का सूट पहना हुआ है, इसकी आंखें बहुत ही थिन हैं, पतली हैं, और वो ऐसे लगता है जैसे कोई साइंटिस्ट हो। अचानक से वो हमारे जो ऑथर हैं उनकी बॉडी के बारे में बातें, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बातें करना शुरू कर देता है, और इस तरह से इसको एक सैटिरिकल वे में दिखाया गया है। और राइटर ऑथर कहता है कि उसके अंदर फ़ोटो खींचने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं है जितना एक कलाकार के अंदर, एक आर्टिस्ट के अंदर होनी चाहिए। इस तरह से वो ऑब्ज़र्व करता है कि कितना कोल्ड वे में ये फोटोग्राफ़र उसको डील करता है। The narrator waits for an hour before the process of taking a photograph is started. आजकल तो हम in a few seconds फ़ोटो ले लेते हैं। While waiting for the photographer, the narrator reads some magazines and journals and ladies and girls. The narrator considers the act of reading these magazines as impertinent thing because it is peep in the privacy of the author. It is interesting to note here that the photographer reads the magazine of ladies, girls and infants. The choice for women-centric magazines speaks volumes about the entire photography industry revolves. This may be one of the reasons that the photographer is not interested in taking the photo of the narrator and gives expression to his scorn for the appearance of the narrator. तो हम देखते हैं कि जब फ़ोटो खींचने की प्रोसेस शुरू होती है तो 1 घंटे के लिए वो 1 घंटे तक इंतज़ार करता है। वो 1 घंटे तक वेट करता है। इस वेट करने के दौरान वो कुछ जर्नल्स, कुछ मैगज़ीन्स को पढ़ता है जो गर्ल्स और लेडीज़ के बारे में थी, और वो उनको कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझता है। बट फोटोग्राफ़र क्योंकि इनसे उसको फ़ोटोग्राफ़र की पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। राइटर को पता चलता है कि जो फोटोग्राफ़र है ये लेडीज़ और गर्ल्स की और बच्चों की मैगज़ीन्स के बारे में मैगज़ीन्स पढ़ता है, और इससे ये भी पता चलता है कि फ़ैशन जो है वो अपनी एक्सट्रीम क्लाइमेक्स पे है। इसीलिए जो फोटोग्राफ